में जाना सीख लिया है But those who have learned to enter into the presence और प्रभु की नजदीकी पा लिया है, and have closeness with the Lord, ये उस भोजन के समान है जो बिरयानी से बढ़ करके है। it's like a tasty food better than biryani. ये उस उत्सव के समान है जो किसी की शादी होती है उससे बढ़कर है। And it's better than a celebration of a wedding. ये उस करोड़ों रुपए से उत्तम है जो आपको मिलते हैं, आप थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, लेकिन जब उसको खर्च कर देते तो आप दुखी होते हैं। Even better than the crore rupees you get and you spend once and then you get disappointed. ये उससे बेटर है जो आप जीवन के बेहतर दिन इस दुनिया में व्यतीत करते, लेकिन वो एक क्षण जहां आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ जुड़ जाती है और आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। And it's better than the luxury of this world, the time you spend with the Lord when your spirit become one with the spirit of the Lord. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सो आप तैयार है प्रभु के वचन को लेने के लिए? So are you ready to receive the word of Okay. God? पिता, हम प्रार्थना करते हैं, Father God, we pray पवित्र आत्मा के जरिए से आज हमसे बातें करिए। through the Holy Spirit talk to us. आपने कहा है You have said it. मैं तुझे बुद्धि दूंगा, I'll give you the wisdom. जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई I'll करूंगा। lead in the path in which you should walk. मैं तुझे सम्मति दूंगा I'll give you counsel. और मैं अपनी आंखों की दृष्टि तेरे ऊपर बनाकर रखकर तुझे अगुवाई करूंगा। I'll keep my sight over you and I'll guide you. भजन संहिता 32:8 का प्रभु ये दाऊद के लिए कहा गया कथन हमारे लिए भी है। Psalms 32 verses 8, Father God, the said word for the psalmist is for us also, और Lord. पौलुस की तरह हम प्रार्थना करते हैं And as Paul prayed, we pray, इफिसी Lord. 1:17-18 के अनुसार, Ephesians 1:17, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, enlighten our inner heart, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा अभी हमें दे, give us the spirit of revelation and knowledge, ताकि हम यीशु का दर्शन प्राप्त कर सके आपके जीवित वचनों को सुनने के द्वारा, so that we may see the Jesus face to face and we may receive through the word. और उन वचनों के द्वारा हमारे मन आपसे जुड़े रहें हमेशा हमेशा के लिए। And through the word, our heart be connected with you forever and ever. और प्रभु हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा के द्वारा बल को उत्पन्न कर, And let the Holy Spirit create the strength in our inner being, ताकि शैतान कभी भी हमारे मनों से वचन को चुराने ना पाए, so the Shaitan may not steal the word from our लेकिन heart, हमारा मन एक अच्छी भूमि बनने पाए but let our heart be a good and जहां fertile land तेरे वचन का बीज बोया जाए। where your word can be sown. तेरा Lord. वचन जो है धार्मिकता का वचन है, Your word is the word of पवित्रता का righteousness. वचन है, Your word is a word of चंगा holiness. करने वाला Your वचन word है, is a healing छुटकारा word. देने वाला Your word वचन is a है, deliverance अनुग्रह word. करने वाला Your word is a वचन है, gracious word. क्षमा करने वाला Your वचन word है, forgives us. और सुरक्षा देने वाला It वचन protects us, है, Lord. भविष्य को आशीषित करने वाला It blesses वचन the है। future, Lord. उन वचनों से प्रभु हमारे मनों को आज तृप्त कर, Lord, satisfy our जो heart हमें with your सिखाना word. चाहते आज हमको सिखाइए, Whatever you wanted to teach us, teach us, क्योंकि Lord. प्रभु आपने हमें ये जुबली का साल दिया है, Because this is the year of Jubilee that you have अर्थात given us प्रभु to आप us. हमें छुटकारे में लेकर चलेंगे, That you will lead us into deliverance. क्षमा में लेकर You will चलेंगे, lead us into forgiveness. मेल मिलाप में लेकर You चलेंगे, will lead us into reconciliation. और प्रभु हमको भरपूरी में आर्थिक रूप में ले And चलेंगे, you will lead us into financial prosperity, Lord. क्योंकि आपका सुसमाचार जो क्रूस का सुसमाचार है हमें धनी बनाता है। Because the cross gospel, the gospel that you shed makes us prosper. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Lord. हमारे जितने भाई लोग रायपुर में हैं आज उनको उपयोग मिले Lord, who our team, the members in the Raipur, Lord, we bless और them, उनको Lord. सामर्थ्य के साथ आपने पिछले 2 दिनों यूज किया है, धन्यवाद देते You हैं। have used them mightily past 2 days, Lord. We thank you, Lord. और बड़ी गवाहियों के साथ वे अगले सप्ताह लौट के आने They will पाए। return with the great testimonies, Lord. प्रभु धन्यवाद देते हैं जो नए लोग आज हमारी कलीसिया में पहली बार आए, Lord, we thank for the newcomers, Lord. और जो पुराने विश्वासी लोग हैं उन सब के लिए And धन्यवाद। for all others, Lord. पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते Holy हैं, Spirit, we welcome you. यीशु की तरह हम आपको आदर और सम्मान देते हैं, Like Jesus, we honor and क्योंकि आप respectfully यीशु welcome की you. तरह एक व्यक्ति हैं। Because like Jesus, you are a person. अभी तक हमने कई बार आपका सम्मान नहीं किया, उसके लिए हमें क्षमा करिए। And we ask for the forgiveness the time we not honored you. कई बार सुनी अनसुनी किया आपकी आवाज को, उसके लिए क्षमा When कीजिए। we dishonored you, we disobeyed you, Lord. लेकिन आज हम अपने मनों को कठोर नहीं करना But today चाहते, we don't want to harden our hearts. लेकिन हम अपने मनों को भटकने वाले मन से आज्ञा मानने वाले मन में परिवर्तित करना चाहते। We want to change our heart from wandering to obedient heart, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. तेरे वचन की गति को समझने की शक्ति दे, Give us the wisdom to understand your ways, Lord. क्योंकि प्रभु मूसा ने इस गति को समझा था, इसी कारण वो पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति बना। Because Moses understood your ways and therefore you become the humblest man जब of हम the तेरी world. गति को
समझ लेते हैं, तेरे रास्तों को समझ लेते हैं, तेरे मार्गों को समझ लेते हैं, हमारे अंदर तू बड़ा काम करता है प्रभु। Because when we understand your ways, when we understand your will, Father God, we do great work through you, Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord Jesus. यीशु के नाम In से the name of Jesus. आमीन Amen. Amen. आमीन। Amen. लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, जहां हम पहले सप्ताह से इस जगह पर बने हुए हैं, हम उसको पढ़ेंगे। We'll read from Gospel of Luke from chapter 4. और 16वां वचन से लेकर के हम 21 वचन तक पढ़ेंगे। We'll read from verse 16 to 21. ओके, हिंदी में ऐसा लिखा है, और वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधना में ले जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक को खोलकर वह जगह निकाली जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दी, वो बैठ गया, और आराधना के सब लोग की आंख उसकी ओर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उन्होंने अचंभा किया, और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं। 22 तक। He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue as was his custom, and he stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him, and he began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." All spoke well of him and were amazed at the gracious word that came from his lips. "Isn't this Joseph's son?" they asked. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष My दे। Lord bless you by reading of this ओके, word. जब आप कोई भी पैसेज पढ़ते हैं, उस पैसेज के ऊपर क्या लिखा है और उस पैसेज में आगे और क्या लिखा है, ये जरूर देखने की कोशिश करें। And whenever you read a passage, you should go above and just below, so that you can तो understand the ऊपर context. आपको ये दिखाई देता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर 40 दिन के लिए उपवास में गया, और वहां शैतान की शक्ति पर जय पा करके पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौट आया। And if you will go above this passage, you will find that Jesus was filled with the Holy Spirit. He spent 40 days and night with the fast, and he came with the fulfillment of the Holy Spirit. और आगे जब आप पढ़ेंगे इसको, तो यीशु मसीह जो है वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। And further, as you read, you will find Jesus came to Nazareth where he was brought up. नाउ यहूदी कल्चर के अंदर में हर एक बेटा या बेटी जो होते थे, उनको 3 साल से लेकर 10 साल तक मूसा का जो 5 पुस्तकें हैं, जिसको हम पंचग्रंथ बोलते हैं या पेंटाट्यूक बोलते हैं, वो याद कराई जाती थी। And in the Jewish culture, it is a custom that a child from 3 to 10 years old, he has to memorize the Pentateuch of the Bible. राइट, और वो लोग मुंह जबानी मूसा के व्यवस्था को याद करते थे। And they used to memorize the Pentateuch. जब 12 साल का बच्चा हो जाता था तो एक बड़ा भोज वो करते थे, और उसके बाद ये कहते थे कि हमारे बच्चे ने जो मूसा का पंचग्रंथ है उसको याद कर लिया है। And- समाज में एक रिकग्निशन उसको दिलाते थे। And at the age of 12, the child was given special dedication that he has completed the Pentateuch, and it was like a feast for the people. 12 साल से आगे जब वो बच्चा आगे बढ़ता था, तो आराधनालय, जो बाइबल के अंदर वर्ड सिनागोग आया है, वो वहां वाद विवाद करने के लिए इकट्ठा होता था। And after the age of 12, he used to gather for discussion in the synagogue. राइट, सिनागोग या आराधना, जब इजराइली लोग बाबुल की गुलामी में 70 साल के लिए पुराने नियम में गए थे,
वहां कोई मंदिर नहीं था, तो यहूदी रब्बी लोग जो गुरु लोग थे उन्होंने मूसा की व्यवस्था को मुंह जबानी लोगों को याद कराने के लिए वो एक ऐसी जगह स्थापित की जहां वो इकट्ठे होते थे और मुंह जबानी कुछ प्रश्न करते थे और उनको रब्बी लोग या गुरु लोग सिखाते थे. And when Israelites went into the Babylonian slavery, in those days, rabbis started to teach people in the places which they call synagogue, and they used to make people memorize the Pentateuch. फिर 30 साल का होने के बाद समाज के अंदर में पहलौठा होता था, यदि लड़का तो पिता एक बड़ा भोजन करता था और उसका जो हिस्सा 2/3 उसको देना है पहलौठे को, वो देता था. And at the age of 30, it was the custom that the firstborn son will be given 2/3 of the property, and the feast was given to the people. Now, यहूदी कल्चर में यीशु मसीह पाला पोसा गया. And Jesus was brought up in a Jewish culture. और उनकी माँ ने अर्थात मरियम ने यीशु मसीह को बहुत सारी चीजें सिखाई. And Jesus' mother Mary taught many things of Jewish culture to Jesus. यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़े लूका 2 अध्याय को, तो आप ये पाएंगे यीशु के 12 साल के होने पर जब वो आराधनालय में लोगों से वाद विवाद कर रहे थे, तब यूसुफ भी थे और मरियम भी थी. And you will find that when Jesus was 12, you will find that both Mary and Joseph was with Jesus. लेकिन जब आप 12 साल से लेकर यीशु के 29 साल तक देखते और 30 साल में जब वो बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, तो आप यूसुफ का नाम वहां कहीं नहीं पाते. And after the age of 12 to 30, when he come to take the baptism, you do not find the name Joseph there. ऐसा लगता है, बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं शायद यूसुफ का देहांत हो गया था. And Bible scholars, as they suggest that Joseph was no more. और यीशु मसीह को बड़ई कहा गया. And Jesus was called as a मरकुस 6वें carpenter. अध्याय को आप पढ़िए, यीशु को बड़ई कहा गया. In Mark 6, it is Jesus is mentioned as a यहाँ इसको carpenter. बड़ई का पुत्र बोल रहे हैं, लेकिन वहां उसको बड़ई कहा गया. Here it is mentioned the son of a carpenter, but in Mark it is mentioned Jesus is a carpenter. लेकिन यीशु मसीह ने बड़ई का काम किया. Jesus worked as a carpenter. अपनी माँ के जीविका चलाने के लिए, अपने भाई बहनों की जीविका चलाने के लिए 29 साल तक उन्होंने बड़ई का काम किया. And for their family's livelihood, Jesus worked as a carpenter. For till 29-30, he worked as a carpenter. लेकिन 30वें साल में फिर जब समय पूरा हुआ, वो यूहन्ना के पास आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए. But at the age of 30, he took the baptism and was filled with the Holy Spirit. Now यहाँ पर जब यीशु मसीह इन वचनों को बोल रहे हैं जो यशाया में लिखा हुआ है, तो पुराने नियम को यीशु के जी उठने के बाद यीशु ने 3 हिस्सों में बांटा था जब चेलों को दर्शन दिया. And when Jesus is reading this word, Jesus divided this thing into 3 portions when he was resurrected. Okay? जब आप लूका 24 अध्याय उसका 27 और 44 वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर उन दोनों वचनों के अंदर यीशु के विषय में जितनी बातें लिखा है मूसा की पुस्तकों में, भजनों की पुस्तकों में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में, ये 3 भाग. And if you read from Luke 24, 27 and 44 verses, you will find the mention of Jesus in the Moses Pentateuch, in Psalms and in the prophets book. आमीन, हालेलुया. Hallelujah. वो पूरी हुई. And it was fulfilled, all the वो prophecies. पूरी हुई. All those prophecies were fulfilled. ओके, पूरी बाइबल के अंदर लगभग ऐसा बोलते हैं कि 2500 से ज्यादा नबूवतें हैं. And it is said like there are more than 2,500 prophecies in the Bible. जो यीशु से संबंधित है, कलीसिया से भी संबंधित है, शैतान की नियति से भी संबंधित है. 2500 है. Which is related to Jesus coming, or Jesus related to everything that Jesus did with church and with the Satan also. यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित 300 भविष्यवाणियां हैं. And the second coming of Jesus, there are more than 300 prophecies are related to यीशु का इस दुनिया में आने से संबंधित प्रतिज्ञाएं बहुत सारी है. And there are many promises of Jesus coming back. सो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको भविष्यवाणियां मिलेंगी, आपको परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं मिलेंगी और आपको परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन मिलेगा. And when you read the Bible, you will find the prophecies for your life, you will find the promises of life, and you will find the encouragement from the word. आज मैं आपका ध्यान इन 18 वचन की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं कि यीशु का मिशन इस दुनिया में क्या था. उसका 5 प्रकार का मिशन था जो ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं. And I do not want to take you to the 18th verse more, but the 5 missions that Jesus said, I want to share that with you. और वहां
5 प्रकार के मिशन को प्रभु पूरा करने आया था। And Jesus came to fulfill those 5 missions. लेकिन जब 21वां वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यीशु ने जब ये वचन पढ़े जो यशाया 61 अध्याय में है, तो कहा तुम्हारे सुनते समय ये वचन पूरा हुआ। But when he said the 21 verse, he said, and he began by saying to them, today the scripture is fulfilled in your hearing. एक हिंदी की बाइबल में लिखा है पवित्र शास्त्र का लेख पूरा हुआ। And in one of the Hindi translation written, the written law is completed today. मेरे पास जो अभी एक हिंदी बाइबल है मुझसे लिखा आज ही यह लेख तुम्हारे सुनते पूरा हुआ। And in one of the translation it is said, the moment you heard it is fulfilled. चाहे वर्तमान में हो, चाहे इतिहास में हो, चाहे भविष्य में हो, जब कभी परमेश्वर का वचन पूरा होता है वहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। Whether in the past or present or in the future, whenever the fulfillment of the word is there, that is the fulfillment of his will. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. जब कभी परमेश्वर आपको कोई वचन देता है, उस वचन को आप पकड़ते हैं, याद करते हैं, उसको बोलते हैं, वो डिक्लेयर करने के द्वारा जो चीज आपके जीवन में लेकर आता है वो परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूरी करता है। And whenever God talks to you through his word, you catch hold of it and then you start to declare. That brings the will of God in your life through that word. अब बहुत सारे लोगों का बाइबल पढ़ने का अलग अलग तरीका है। And people have different ways of reading Bible. कभी कोई लोग तो ऐसा खोलते हैं और कहते हैं ये वचन मिल गया। And some people just open it and they just put their finger on the first word कुछ and लोग that is the word they शुरू received. करते हैं मत्ती से, कुछ लोग शुरू करते हैं भजन संहिता से, कुछ लोग भजन संहिता जीवन भर पढ़ते रहते हैं। And there are people who start from Matthew and then there are people who read throughout the life only the Psalms they read. मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले एक साधारण नहीं लेकिन असाधारण विश्वासी है, आपको बाइबल के एक एक शब्दों से पता होगा कहां क्या चीज लिखी है। But if you are not an ordinary reader but an extraordinary reader, you will find from each and every word what is written in which word and what is related with what. आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं है बाइबल को जानने के द्वारा कि प्रभु कह रहा है तुम पास्टर बनो करके, नहीं, एटलीस्ट आपको परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा आप अनपढ़ नहीं आत्मिक दुनिया में, लेकिन आप ज्ञानी कहलाएंगे आत्मिक दुनिया में। And to read the Bible and to study it, you need not to be a pastor or servant of God, but becoming wise in the spiritual world, you need to go through all the verses of the Bible. हालेलुया, Hallelujah. होशे 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, लिखा है। And Hosea 4:6 says, my people perishes of lack of knowledge of my होशे word. 8:12 कहता है मैंने अपनी व्यवस्था की लाखों बातें मसीह लोगों को लिखता आया, ईसाइयों को लिखता आया, लेकिन वो लोग उससे पराया समझते हैं। And Hosea 8:12 says, I wrote for them the many things of my law, but they regarded them as something alien or alien. सो कई बार लोगों को वचन नहीं पता है। And many times people do not know the word. यीशु को वचन पता था। Jesus was familiar with the आज word. सबसे पहली चीज जो हमको मसीह जीवन में सीखने की जरूरत है, वचन को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। And today, as a growing Christian, we need to know the word as a priority. यीशु को तो यशाया भविष्यवक्ता का एक फोल्डर दिया गया पूरा, जो चमड़े पर लिखा हुआ था। And Jesus was given a complete scroll of the Isaiah prophet. और ऐसा कहते हैं यशाया के अंदर 66 अध्याय है, 39 अध्याय पुराने नियम को दिखाते हैं और 40वें अध्याय से 66 अध्याय तक नए नियम को दिखाते हैं। And Isaiah contains 66 chapters and 39 are for the Old Testament and the next one are for New. सो बाइबल के अंदर 66 पुस्तकें हैं। And there are 66 books in the 39 Bible. पुस्तकें पुराने नियम में और 27 पुस्तकें नए नियम में। And 39 for the Old Testament and the 27 for the New Testament. तो यशाया को जब आप पढ़ते हैं, यशाया को पढ़ने पर यशाया को यीशु ने जरूर कई बार पढ़ा होगा। And Jesus read multiple times at the book of Isaiah. उसने यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ा होगा, He might have read Jeremiah also. उसने एजकेल की पुस्तक पढ़ा He might have होगा, read the Ezekiel book उसने also. दानियल की पुस्तक He पढ़ा would have होगा, read the Daniel उसने also. होशे की पुस्तक पढ़ा He would होगा, have read the Hosea also. योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, सपन्याह, हागै, जकरिया, मलाकी, ये सब पुस्तकों को उसने पढ़ा He होगा। has read all of these prophetic books. लेकिन जब यशाया की पुस्तक दी गई, But when he was given the पन्ने scroll of पलटाता रहा, Isaiah, पलटाता रहा और जब 61 अध्याय आया, 1 और 2 वचन पे वो ठहर गया और कहने लगा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। he went on turning the pages and pages and pages, and then he came to chapter 61 verses 1 and 2 and he said, the Spirit of the Lord is on me. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो वहां रुक गया।
He stayed there. और पढ़ दिया He read it. और पढ़ने के बाद ऐसा बोला, And he said it. आज ये वचन जब तुम सुन रहे हो, मेरे जीवन के अंदर जो जुबली का साल चालू हुआ है उसमें ये पूरा हो गया है. And the moment you are hearing the word that I am reading in this year of Jubilee, this word has fulfilled upon my life. ना बाइबल क्यों पढ़ना है? Why should we read Bible? बाइबल को पढ़ने का कारण क्या है? And what is the reason of reading the Bible? एक विश्वासी को बाइबल क्यों पढ़ना है? इसका सिंपल रीजन यही है, वो आपका पिता है और उसने आपको एक लव लेटर दिया है, एक पुत्र बेटा या बेटी होने के कारण. यदि आप इस लव लेटर को नहीं पढ़ते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं कहां आ गया हूं करके, बल्कि आप नरक जाना चाहेंगे वापस. Why should a believer read the word of God? Because that is a love letter from the Father to the Son. If you will not get familiar yourself with the word of God, the love letter of God, when you will go to heaven, you will not be familiar with the heavenly things. समझ रहे हैं बात को? Hallelujah. परमेश्वर के वचन को दुनिया में, ये जो कॉपी हमारे पास है भजन संहिता 119 का 89 कहता है इसकी एक कॉपी स्वर्ग में है. And the word that we are having today, one of the copies, Psalms 119:89 says one of the copies there also. कहता है कि आकाश में तेरा वचन स्थिर है. एक बाइबल में लिखा इंग्लिश में, स्वर्ग में तेरा वचन रखा हुआ है. And one of the Bible versions says your word is kept in the heavens. सो बाइबल को पढ़िए. So you should read the Bible. बाइबल को पढ़िए. You should read the Bible. आप में से कई लोग जो हैं बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल को पढ़िए. Many of you hear great prophets, but you should read the Bible. आपका पर्सनल टच बाइबल के साथ होना चाहिए. Your personal touch should be with the Bible. बाइबल नहीं पढ़ने से आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ, धन, संपत्ति, दुनिया में जो कुछ चाहिए वो नहीं मिलेगा. If you will not read the Bible, you won't find the prosperity in all other material things. बाइबल जो है वो धन, संपत्ति, बुद्धि, ज्ञान, पारिवारिक सुख, समृद्धि सब कुछ कैरी करती है. And Bible carries all the financial prosperity and all types of prosperity that is related with the finances and everything. मेरी लाइफ के अंदर में मैंने जब 17 साल का था प्रभु का दर्शन पाया, बाइबल पढ़ने लगा, मैं बहुत सारे ऐसे नेगेटिव अनुभव से गुजरा, लेकिन जब जब बाइबल को क्लेम करना शुरू किया अपने जीवन के लिए, वहां से मेरे लिए प्रभु ने दरवाजों को खोलना शुरू किया. And at the age of 70, when I was growing in the Lord, hallelujah, I was with negative thoughts, but with reading of the Bible, my heart started to change and I started to move with the word of God. कई बार साल में 2 बार पढ़ने के लिए बिल्कुल मैं प्रयास करता हूं. And sometimes I try to read twice in a year. और परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, समझने से पवित्र आत्मा कुछ नया काम करना प्रारंभ करता है. And by reading and meditating the word of God, Holy Spirit starts to work newly in my life. सो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं ये वचन तुम्हारे सुनते समय पूरा हो गया है. And Jesus is telling that by hearing your word, this word is fulfilled today. जब कभी आप प्रभु का वचन सुनते हैं, कैसे सुनना भी 3 प्रकार का है. And whenever you hear the word of God, there are 3 types of hearing. अभी जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, First, that I am speaking and you are listening. ये जो है एक प्रकार का संवाद है. And it is like a conversation. आमीन. लेकिन एक दूसरे प्रकार का है सुनना, जिसमें आप पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा आपको सुनाता है. And there is another type when you read and Holy Spirit makes you to listen something. आज सुबह मैं जब ध्यान कर रहा था, मैं नहाने के समय में मैं भजन संहिता 32 पर ध्यान करने लगा अचानक नहाते समय. And while I was going to take bath, I was reading Psalms 32 and I was meditating on it. और वहां पर एक पाप क्षमा जिसके किए जाते हैं उसकी ब्लेसिंग्स के बारे में लिखा है. And there is mentioned blessing over the people whose sins are pardoned. और उसके 8वें वचन में लिखा है, डेविड मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा. इस वचन को हमने याद कर लिया. And Psalms 32 verses 8 is it says, I will guide you, I will instruct you and teach you in the way and you should, I will counsel you and watch over you. And I memorized that word. प्रभु मैं तो 50 साल के ऊपर हो गया, मुझे बुद्धि की क्या जरूरत है, मेरे पास बहुत बुद्धि है. Lord, I am now above 50, Lord. I am already having the much of the wisdom. मुझे Why do I ध्यान से require the सुनिए. wisdom? मुझे ध्यान से सुनिए. Pay attention to me. आपको प्रार्थना करना है, You need to pray. बुद्धि की जरूरत है. You need wisdom. बाइबल को पढ़िए ध्यान से. Read the Bible very देखिए आप carefully. पहला पत्रस, First Peter. मैं आपको बाइबल पढ़ाऊंगा ताकि आप बाइबल पढ़ सके. I'll आज let सुबह you जो read. लोग नहीं पढ़ करके आए तो यहाँ पढ़िए. I'll let you read the Bible. हैं? राइट. पहला पत्रस First Peter. और उसका 4था अध्याय. It's 4th chapter.
मिला? 7वां वचन, 7th verse. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो. The end of all things is near, therefore be clear-minded and self-control so that you can pray. बी क्लियर माइंडेड. और साफ मन रख करके रहे, हाँ, साफ बुद्धि. साफ बुद्धि के साथ. हाँ, बुद्धि. यदि आपकी बुद्धि में जंक लगा है दुनिया का, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे. If there is corrosion in your mind, you cannot pray. कैसा जंग भैया? What kind of corrosion? किसी को माफ नहीं किया, If you have not forgiven someone, मुंह से किसी के विरुद्ध बोला, if you have spoken something against someone, यहाँ की बात वहां किया, if you have spoken evil against someone, मुंह से झूठ बोला, if you lied, ये सब बातें आपकी बुद्धि को जो है प्रार्थना करने में रुकावट बनती है. and all these things become barrier and stops you to pray. इसलिए कई लोगों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, And therefore some prayers are not heard by the Lord क्योंकि आपकी बुद्धि क्लियर नहीं है, because your mind is not clear. यीशु का लहू से धुली हुई नहीं It's है, not washed by the blood of वचन Jesus. के द्वारा चलायमान नहीं है. Because it is not guided by the word of God. भैया मेरी पति पत्नी के तो बहुत झगड़े होते, थोड़ी थोड़ी बात में झगड़े होते. क्यों होते पता है? And there are many quarrels that continue with the husband and wife. Why that is there? हस्बैंड को भी बुद्धि नहीं है और वाइफ को भी बुद्धि नहीं Because है. husband and wife, they both lack wisdom. ध्यान से सुने, Pay attention. नीति वचन 14:1 कहता है, Psalms 14:1 says, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को ढा देती है. and Proverbs says that every wise woman builds its house and the foolish destroys the house. तो स्त्री के पास बुद्धि नहीं होगी तो If the woman will not have the wisdom, she will destroy everything. और पुरुष को भी बुद्धि चाहिए जो पति है. And husband too need the wisdom. मेरे 33 साल के अनुभव में मैं ये समझ पाया, प्रेम से परिवार नहीं चलता है, बुद्धि से चलता है. In my 33 year of experience, I can say house is not run by the love but by wisdom. लहू बाद में आता है. Love comes later. वो ऐसा वीआईपी मसाला है जो टेस्ट के लिए डाला जाता है. And that is just like a VIP masala that is poured later on. पहला पत्रस 3:7, 1 Peter 3:7. हे पतियों, Husbands, अपनी अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो. in the same way, be considerate as you live with your wives, बुद्धिमानी के साथ. with considerations, और आगे लिखा है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो. and treat them with respect as the weaker partner. भैया मैं तो बहुत उसका आदर करता हूं, लेकिन वो हमेशा मेरा निरादर करती है. Brother, I always honor, but she always dishonors me. करने दो ना. Let her do. पता है पतियों, वो कितना भी निरादर करे ना, उसकी प्रार्थना रुकेगी, आपकी प्रार्थना कभी नहीं रुकेगी. If she is dishonoring, her prayers will आगे लिखा be है, barrier. तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए. And it's तुम्हारी. And it's written, you are the heirs with gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayer. अब पत्नी आदर नहीं कर रही है, उसका प्रॉब्लम है भाई. पति आदर नहीं कर रहा है, उसका प्रॉब्लम है. लेकिन आपकी प्रार्थना यदि सुनी जानी है तो आपको अपने पार्टनर को बुद्धिमानी के साथ ट्रीट करना पड़ेगा. So if husband or wife is not honoring each other, that is their problem, that will hinder their problem, but you and your wife should work with wisdom. जब मेरी नई शादी हुई थी तो मैं कुछ क्राइसिस से गुजर रहा था. And when I was newly मेरे married, मम्मी I was पापा going और through हम लोग financial सब. crisis. My family was going through लेकिन मैं एक दिन इस बात पर मनन करने लगा कि बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो. that. And I started to meditate one day that I should stay wisely with my wife. तब प्रभु कहने लगे, And then Lord said, डेविड तू मोटरसाइकिल चलाना जानता है? मैंने कहा जी. then Lord asked, David, do you know how to ride the bike? पहला गेयर स्टार्ट करना, फिर पहला गेयर, दूसरा गेयर, तीसरा गेयर, चौथा गेयर. First, you start the bike and then first gear and second gear and then the on. एंड जरूरत पड़ने पर फिर वापस 4 से 3 और फिर 2 और फिर स्पीड और फिर वापस स्पीड लेना. And when required, you lower down your gears. तो प्रभु ने मेरे को बोला, डेविड तेरे को बुद्धि चाहिए एक व्यक्ति को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए बुद्धि चाहिए. And then Lord said, you need the wisdom as one आ गया. required for riding यहाँ the car. यहाँ यहाँ का स्क्रू टाइट हो गया अभी.
समझ में आ गया। And then I understood, I got the method. तब से लेकर आज तक हम साथ में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स आए लेकिन हम साथ में हैं। And then the life carried, there was no problem. हालेलुया। Hallelujah. अब मान लो आप कमी से गुजर रहे हैं, घटी से गुजर रहे हैं, कुछ समस्या से गुजर रहे हैं, ऑफिस में क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपको बुद्धि चाहिए। And for example, if you are going through a crisis or crisis-like situation in house or office, you need the याकूब की पत्री wisdom. पढ़िए आप, पहला अध्याय का 2 से 4 तक, और 5 पद में लिखा है, जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। And James 1 verses 5 says, if any of you lack wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. बुद्धि को मांगिए। Ask the wisdom from the Lord. इसीलिए तो सुलेमान राजा ने बुद्धि को मांगा तो 700 रानियां 300 रखेलियां और पूरे विश्व पाट को वो चला पाया। And therefore Solomon asked for the wisdom that he could lead all his wife and all the concubines that he had and that emperor that he आपको had. लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखना है तो बुद्धि से चलिए, लेकिन स्मार्ट मत बनिए, क्योंकि जब आप स्मार्ट बन जाएंगे तो जैसे सुलेमान राजा ने बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करके पड़ोसी राज्यों की लड़की को भी अपनी पत्नी बना लिया और बाद में वो मूर्ति पूजा करके बैकस्लाइड हो गया। And if you want to lead a good life, you need wisdom. Like Solomon, when he was going with a good life, he was good. He was in a good state. But when he used his smart work or like extra wisdom, he fall because he married. पता है जब from the यीशु neighboring छोटे बालक country. थे उनके विषय में क्या लिखा है? And what is written about Jesus while he was a kid? 2:52, लूका 2:52, 252। And Luke 2:52 says, वो बुद्धि से और डील डॉल से और परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। and it is written about Jesus that Jesus grew in wisdom and stature in favor with God and man. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. चर्च में आपको यह कहना चाहता हूं, यदि पवित्र शास्त्र के वचन आपकी जिंदगी के अंदर खरे उतरना है तो आपको प्रभु की बुद्धि चाहिए, जिससे आप दिन प्रत्येक दिन प्रभु के भय में चल सकें। And church, I want to encourage, if you want to live a good life, day by day the word of God should get rooted in you. आमीन। Hallelujah. देखिए आप पुराने नियम को पढ़िए, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। And if you will read the Old Testament from Genesis to Malachi, उत्पत्ति की पूरी पुस्तक जब आप पढ़ते हैं वो 2500 साल कवर कर रही है, and Genesis itself covers 2,500 years. और उसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं, लेकिन मूसा जब 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ बैठा, प्रभु ने उसको दर्शन में दिया। And no one had that account with any, hallelujah. But when Moses sat in the presence of the Lord, he was given that account. हालेलुया। Hallelujah. पूरा 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 प्रभु ने प्रकाशन दिया, बुद्धि दिया, उसको ज्ञान दिया, समझ दिया लिखने के लिए। And God gave him the revelation to write everything that was happened throughout this 20. और निर्गमन से लेकर प्रकाशित मलाकी तक हम ये देखते हैं, जो मूसा को प्रभु ने व्यवस्था दिया था वो व्यवस्था को लोगों ने पालन किया या नहीं किया। And from Exodus to Malachi, we found out whether people followed the laws or not. इसका मतलब भविष्यवक्ताओं को जब बुद्धि मिली, उन्होंने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया। It means when the prophets received the wisdom, they received the wisdom from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अब नए नियम में आते हैं। And when we come to the यीशु New मसीह Testament, को जब छुटपन में बुद्धि मिली, तब परमेश्वर के वचन जो उनको सिखाए गए थे, उन वचनों को उन्होंने याद कर लिया और ठीक समय पर उनको उन्होंने बोलते गए। and when Jesus was taught and he was growing as a kid, he learned all those words and he went on growing on those words. इसलिए जितने माता पिता हैं, आपको अपने बच्चों को छुटपन से ही प्रभु का वचन सिखाना है। And all those who are parents, you should teach your word from their childhood. आमीन। Amen. इसलिए तिमुथियुस को उसकी नानी ने और उसकी माँ ने, लुइस और यूनिके, ये दोनों ने जब वो बालक था तभी से पवित्र शास्त्र को उसको सिखाया, ऐसा बाइबल कहती है। And as the Bible says, that Timothy was taught by Lois and Eunice, their mother and grandmother, since his childhood. हाँ, जब हम बुढ़े हो जाते हैं हमको लगता है कि बस हम नाना नानी दादा दादी बन जाएं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसके बाद ज्यादा जवाबदारी आती है बच्चों को सिखाने की। And people think now we are old, now we do not have any responsibility with us, but Bible says you have greater responsibility in those years. नाना नानी दादा दादी बनने के बाद ज्यादा आपको जो है आपके नई जनरेशन को आपको वचन सिखाना होता है।
And grandpa, granny, they all have much responsibility to teach the word of God to the younger ones. हालेलुया Hallelujah. सो भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने वचन दिया And to the prophets, God gave the और प्रभु word. ने उनको वो बुद्धि दिया जिसके कारण उन्होंने लिखा And God gave them wisdom through which they could write. नाउ नए नियम में जब हम आते हैं यीशु ने चारों सुसमाचार के अंदर जो भी बोला परमेश्वर की बुद्धि उनके अंदर थी And in the New Testament, in all the four gospel, what Jesus said, the wisdom of God was upon him. आमीन हालेलुया Hallelujah. और उन्होंने जो भी कुछ सिखाया अपनी तरीके से नहीं सिखाया पिता से वो सुनते थे पुराने नियम को और पवित्र आत्मा उनको जो नयापन देता था उसको वो बोलते थे और सिखाते थे And whatever Jesus taught, it was not from him, but it was from God. Whatever God taught him, he shared the same thing with us. हालेलुया Hallelujah. इसलिए इब्रानी की पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन कहता है पूर्व काल में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग तरीके से बातें किया And Hebrew 1:1 says, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. लेकिन इन अंत के दिनों में But एक का दो इब्रानी एक का दो इन अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें किया But in this last day, he has spoken to us by his son. आमीन Amen. हालेलुया Hallelujah. पुत्र बातें किया 3.5 साल And God, the son spoke for 3.5 years. 33.5 साल दुनिया में उसका जीवन रहा He spent 33.5 लेकिन years. 3.5 साल उसने बातें किया But for 3.5 years, he और वो spoke. अपने वचनों के विषय में यीशु स्वयं ये कहता है जो वचन मैं तुमको बोल रहा हूं वे आत्मा भी है और जीवन भी है And the word Jesus spoke, it was, he said about them, the word I speak has life and they are true also. लाइफ एंड स्पिरिट एंड लाइफ They are spirit and life. आत्मा भी है और जीवन भी है The word I speak is spirit जॉन and the life. 6:63 यूहन्ना 6:63 And John 6:63 कहता है says, कि शरीर से कुछ लाभ नहीं and there is no benefit from the body. शरीर से कुछ लाभ There is no नहीं benefit from the body. शरीर से कुछ लाभ There नहीं is no benefit from the क्योंकि ये body. मांस और लहू है और ये खत्म हो जाएगा Because the blood and the flesh will destroy. लेकिन जो मेरा वचन है But my word, जो मैंने पिता से पाया है which I received from the Father, प्रकाशन के रूप through the में revelation, मैं जो जीवित वचन हूँ who I'm a living word. वो मुझे जो है जीवित वचन जो है वो जीवन देता है और आत्मा भी देता है The living word that gives the life and the spirit. हालेलुया Hallelujah. ना यीशु चले गए क्रूस पर मरे गाड़े गए जिंदा हुए स्वर्ग चले गए लेकिन इब्रानी 3 अध्याय 7वां वचन Jesus crucified, died and resurrected, went to the cross. इब्रानी 3 अध्याय 7 वचन Hebrew 3 verses 7 और 15 वचन and 15 verse. इब्रानी 4 अध्याय 7वां वचन Hebrew 4:7. ये दोनों वचन तीनों वचन ये कहते हैं आज अपने हृदय को तुम कठोर ना करो यदि तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो And it says, so is the Holy Spirit said today, if you hear his voice, do not harden your hearts. यदि पवित्र आत्मा को तुम सुनते हो If you hear the Holy Spirit, पवित्र आत्मा कौन है who is the Holy Spirit? यीशु का आत्मा है Spirit of Jesus. पिता का आत्मा है Spirit of Father. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है Holy Spirit is a person. मेरे पर्सनल इंटरेक्शन के अंदर मैंने पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में देखा In my personal encounter with the Holy Spirit, I have seen Holy Spirit is उसके a पास person. शरीर है Holy Spirit is a flesh. उसके पास इच्छा है Holy Spirit is a desire. उसके पास भावनाएं Holy हैं Spirit is emotions. वो कई बार आपसे शोकित होता है And sometimes Holy Spirit is grieved by your life. क्योंकि कई बार हम झूठ बोलते हैं Sometimes we lie. गाली देते We हैं abuse. हम चोरी करते हैं We steal. हम गुस्सा करते हैं We get angry. हम बदला लेते And हैं we take revenge. हम क्षमा नहीं करते And we do not forgive वो others. शोकित होता है And Holy Spirit is grieved by all these इफिसी things. 4:30 कहता है वो शोकित होता है And Ephesians 4:30 says he grieved by और all जब वो afflictions. शोकित होता है वो आपसे बात करना बंद कर देता And है when he's grieved, he do not speak to you. वो दुष्ट आत्मा की तरह नहीं है कि आएगा पकड़ेगा हिलाएगा डुलाएगा और आपसे कुछ गलत कार्य कराएगा And Holy Spirit is not like an evil spirit that he will come and he will shake you and he will speak evil of you पवित्र and he will आत्मा एक go. बहुत सभ्य व्यक्ति है And Holy Spirit is a gentle person. बहुत सभ्य व्यक्ति He's very है gentle. उसके साथ जो सभ्य लोग हैं वही चल पाएंगे And those who are gentle with him, only they can walk with the Holy जो Spirit. मन के प्रभु के साथ जुड़े हुए लोग ही चल पाएंगे And those who are connected with the heart, only they can walk. जो अपनी इच्छा से चलने के लोग हैं वो नहीं चल पाएंगे And those who are walking by their own will, they cannot आमोस follow. 3:3 कहता है कि दो
व्यक्ति जब तक सहमत ना हो एक साथ नहीं चल सकेंगे। And Amos 3 says, when two people are not agreed, they cannot walk together. आमोस के अनुसार जब तक आप और परमेश्वर सहमत ना होंगे आप प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे। According to prophet Amos, if you are not agreed with the Lord, you cannot walk with God. हनोक के विषय में लिखा है वो परमेश्वर के साथ साथ चला। About the Enoch, it is said he walked with the Lord. नूह के विषय में लिखा वो परमेश्वर के साथ साथ चला। About the Noah, it is written he walked with the Lord. अब्राहम के विषय में लिखा वो परमेश्वर के साथ साथ चला। About Abraham, it is written he walked with the Lord. ओ दाऊद के विषय में लिखा परमेश्वर के साथ साथ चला। About David, it is written he walked with the Lord. कई भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर के साथ साथ चले। Many prophets walked with the Lord. यीशु परमेश्वर के साथ साथ चला। Jesus walked with the Lord. और जो 12 चेले थे प्रभु के साथ चले लेकिन एक चेले ने धोखा दे दिया। And 12 disciples followed Jesus, but one deceived. जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ सहमत ना होंगे वचन के जरिए से तब तक आप साथ में नहीं चल पाएंगे। Until you do not agree with the Holy Spirit to the word, you cannot walk with the Lord. शिमशोन की तरह कई बार पवित्र आत्मा लोगों को छोड़कर भी जा सकता है। And like Shimshon, Holy Spirit may live sometime. जब आप अपनी मर्जी का जीवन जीते हैं और उसको खुश करने के बजाय अपने आप को खुश करते हैं पवित्र आत्मा आपको छोड़ के भी जा सकता है। When you live on your own and do not follow His will, He can leave you. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है Holy Spirit is a person. और जब आप उस व्यक्ति को यीशु के समान ट्रीट करते हैं मानो यीशु दुनिया में है। And when you treat Holy Spirit as a person as Jesus Himself in the world, वो सबसे बड़ा काम जो आपके अंदर करता है पवित्र शास्त्र के वचनों को आपकी हृदय की पटियाओं पर लिखना शुरू करता है। and the very first and great work He does, He starts to write on the tablet of your आप मसीह heart. की चलती फिरती लिखी हुई एक पत्रिका बन जाते हैं। And you are the living epistles of Jesus. आमेन Amen. हालेलुया। Hallelujah. लोग आपके स्वभाव को देखकर कहते नहीं इसमें कुछ अलग है। And when people see your behavior, your character, they see His different. सो यीशु एक समय स्पोकन वर्ड था And Jesus once He was a spoken word, और अभी वो लिविंग वर्ड है, जीवित वचन है। but now He's the living word. लेकिन जितने लोग पवित्र आत्मा से चलायमान होते, But those who are led by the Holy Spirit, चलायमान led by the Holy Spirit, चलायमान led by the Holy Spirit, सुनकर by hearing, और सोचकर by thinking, चलायमान होते, led by the Holy Spirit, वे लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते they हैं। are the sons and daughters of God. परमेश्वर के राज्य में 3 प्रकार के बेटे बेटियां हैं। There are 3 types of sons and daughters in the kingdom of God. कुछ लोग जो अभी अभी प्रभु को पाए हैं और प्रभु में नए हैं, Those who have received newly, they have become new वो believers. नवजात शिशु की तरह They है। are infants उनके लिए दूध की जरूरत है। and they required milk. लेकिन कुछ लोग हैं जो जवान बच्चे की तरह, जैसे हमारा प्रिंस है ऐसे जवान बच्चे की तरह जवान हैं। And there are other people who are now in the category of young people like Prince. इन्होंने दूध पिया है और अब अन्न खाना सीख लिए हैं। And they have already completed their diet on milk. Now अब started जब to कभी eat परीक्षा something. इनके पास आती है शैतान के द्वारा, झूठ है, हर प्रकार की कमजोरियां जो पहले हम जिसमें जीते थे, ये परीक्षाओं को पहचानते हैं और वचन बोलकर आत्मा की तलवार चलाकर शैतान को हराते हैं जैसे यीशु ने हराया था। And when the temptations comes or when they go through the test, they take the word as the sword and they defeat the Satan in those situations. मान लो आप उदाहरण के लिए प्रभु में आने के पहले कुछ आदतों में थे जो प्रभु को पसंद नहीं थी। For example, you were in such habits which were not pleasing God. झगड़ा करना हो सकता है, It might be fighting. गाली देना हो It सकता है, might be abusing. शराब पीना हो सकता है, Alcohol. या पान बीड़ी सिगरेट गुटखा हो सकता है, Or any consumption of any kind या of शारीरिक tobacco. कोई भी बुराई हो। Or any physical evil. लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है But when Holy Spirit comes inside और of आपके you अंदर रहने लगता है, and starts to dwell in you, वो आपके अंदर एक ऐसा अंदर स्वभाव बनाता है जो पाप से लड़ने वाला होता है। and it creates such a attitude and habit which fights against the evil works. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मान लो आपके घर में चोर आ जाए, नहीं आएंगे लेकिन आ जाए, For example, if thieves come to your house, कितने लोग कहेंगे बाबा रे बाबा ले जा, जद को जो चाहिए ले जा। how many of you will say you can take away लेकिन whatever you कितने लोग want? कहेंगे ए How many of you Action. scold, scream upon him? एक्शन ए। You will take action against him. यही है जवान प्रभु में वो लोग हैं जिनके अंदर प्रभु का वचन बना रहता है और वो वचन के आधार पर बोलकर परिस्थितियों को अपने काबू में करते हैं।
And young believers in Christ are those who take stand against the situation, and by declaring the word of God, they stand and they defeat those situations. यीशु मसीह एक दिन नाव में था, Jesus was in the चेले boat भी one थे, day. Disciples were आंधी there, आई, and storms चेले came, घबरा गए। and they were. प्रभु बोलते हैं, अल्प threatened. विश्वासियों, तुमने अल्प विश्वास क्यों किया? And to the disciple he said, "Why you believed halfly?" लिटिल फेथ, यू Little हो faith. लिटिल फेथ। With little मत्ती faith. के अंदर 3 बार, कम से कम 3 बार लिटिल फेथ वर्ड आया है। And in Matthew 3 times, little faith is used. प्रभु ये कहना चाहते हैं, And God wants to say, तुम्हारा विश्वास सो रहा है, your faith is in a sleep mode. मेरा विश्वास जागा हुआ है। My faith is active mode. प्रभु बाहर गए, And Jesus आंधी को rose. देखा, He saw तूफान को storms, देखा, wind, and he saw नाव the ऊपर storms and नीचे wind. हो रही थी, And boat was going up and down. शांत रहे, थम जा। That Jesus word was enough. and Jesus said, "Be calm," and it was. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु बोलते हैं, पतरस दुआ कर। And to the Peter, Jesus said, "Pray." अरे स्तुति कर, प्रेज द लॉर्ड बोल, थोड़ी देर रुक जाएगा। And you should pray and you should praise the Lord. It will be पवित्र calm. आत्मा आपके अंदर जो है, आपको वो बुद्धिमानी समझ देगा जिससे आप जो परिस्थितियां चल रही है, चाहे प्राकृतिक हो अप्राकृतिक हो, आप उसके ऊपर अधिकार लेते हैं। And the Holy Spirit inside of you will give the wisdom and understanding to stop the situation, whether it is natural or artificial, to stop those situations. मुझे नहीं पता, आज मेरा वचन दूसरा है, मैं कहीं और जा रहा हूं। I do not know. I पवित्र prepared आत्मा something कहीं else, और but ले Holy जा Spirit रहा is है leading मुझे। somewhere else. मेरे वचन आज के दूसरे हैं, I have prepared something else. लेकिन प्रभु आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का ऐसा समावेश चाहता है कि आप अपने आप को शून्य कर दें और प्रभु को अपने अंदर काम करने दें। And the Holy Spirit wanted to dwell in you and wanted to work through the word, so that whatever he wanted to speak to you, you can carry. हालेलुया। Hallelujah. सो जब कभी वचन पूरा होता है तो क्या होता है? So what happens when the word is fulfilled? मैं नहीं जानता आपका अनुभव क्या है, I do not know what is your लेकिन मेरे experience. जीवन के अंदर जब कभी प्रभु ने कोई वचन पूरा किया, मेरे ऊपर बहुतायत से अनुग्रह आया। But whenever God completed any word upon my life, I saw grace in abundant coming upon my life. कुछ चीजों के लिए प्रार्थना किया, जब मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आपका वचन मेरे जीवन में ये मैं पूरा होते हुए देखना चाहता हूं, मुझे अनुग्रह मिला। And when I prayed, Lord, I wanted to see your word getting fulfilled upon my life. I saw abundant grace upon my life. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के वचन के अंदर वो सामर्थ है प्रियो, जब कभी वो बोला जाता है, कहा जाता है, वो परिस्थितियों को बदलता है। And there is huge power in the word of God. When it is read, when it is spoken, it changes the situations. ओके, उदाहरण के लिए, For example, मान लो उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कोई आश्चर्य कर्म हो और बाहर चारों तरफ आपको अंधियारा नजर आ रहा है, and you wanted to see a miracle outside, but you see darkness all over. अब आपके अंदर जो वचन है वो जीवन है और आत्मा है। And the word that is inside of you, that is spirit and life. वो वही वचन है जब भजन संहिता 148 के 6 को जब आप 8 को जब आप पढ़ते हैं, प्रभु ने वो वचन बोलने से आज भी दुनिया के अंदर पाला गिरता है, दुनिया के अंदर बारिश होती है, दुनिया के अंदर ठंड होती है, दुनिया के अंदर में बर्फ जमती है। ये वही वचन है। And that same word that brings lightning and hail, snow and clouds, stormy winds that do his bindings. ये वही वचन है जब अंधकार था, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। And that same word that was spoken once and brought light ये to the वही वचन है, darkness. ऊपर का जल ऊपर और नीचे का जल नीचे हो जाए। And this word is the same word which brought the separation of the ये वही waters. वचन है जो प्रभु ने कहा हर छोटे बड़े बीज के पौधे जो है खाली स्थान में उग जाए और पानी एक जगह अलग जमा हो जाए। And this is the same word which brought saplings above the ground, and it was fulfilled. उसने जो कहा वो हो गया। Whatever it was spoken for, it completed. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. भजन संहिता 147 का 18 कहता है उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। Psalms 147 verses 18 says, He sends His word and melts them अति वेग से दौड़ता है। very quickly. सूरज जब उगता है, जितना टाइम सूरज को रोशनी देने में आकाश से पृथ्वी पर टाइम लगता है, उससे ज्यादा तेज प्रभु का वचन दौड़ता है। And when sun rises, the speed of light that is carries the light more faster than the word. हालेलुया। Hallelujah. सोचिए, आप जब पहले दिन पूरा अंधियारा था, परमेश्वर ने जब उजियाला बोला,
तब वो वचन जब मुंह से निकला उसके अंदर उजियाला करने की शक्ति थी, और वो जैसे ही निकला मुंह से उजियाला हो अंधियारे को चीरता हुआ, वातावरण को अंधकार के बदलता हुआ रोशनी को लेकर के आया। And the day God spoken about the light in the darkness, it moved with such a velocity that it spread it everything, and it brought the light into the darkened atmosphere. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आपकी विपरीत परिस्थितियों में जब आप वचन बोलते हैं, वो वचन इतना ज्यादा वातावरण के अंदर घूमता है और वो वातावरण को बदल देता है आपके चारों ओर। शायद पहले शुरू में कुछ सेकंड्स यहां बदलेगा, फिर कुछ मीटर आगे बदलेगा, फिर कुछ किलोमीटर आगे बदलेगा, और एक दिन आपकी परिस्थितियों को वो 100% बदल देता है। In your old situation where the word is declared over your situation, it will start to change the situation minute by minute and particle by particle, and you will see within some time, hallelujah, your situation will be completely changed. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. वो वचन काम करता है, That word works. वचन काम करता है, Word works. वचन दौड़ता है, Word runs. वचन दौड़ता है, Word runs. अति वेग से दौड़ता And है। it runs very quickly. बोलने वाले को केवल विश्वास चाहिए, And the speaker should have the faith. सुनने वाले को विश्वास चाहिए, And the one who listens should have faith. और जब आप बोल देते हैं परिस्थितियां नहीं बदलती है तो भी विश्वास चाहिए। And when you have spoken, situation have not turned, then too you require the faith. हालेलुया, Hallelujah. इसलिए प्रभु ने कहा था पहाड़ से उखड़ जा, समुद्र में गिर जा, अपने मन में संदेह न करे, जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, उसके लिए वो हो जाएगा। And the word said, if you will believe in your heart, if you will say to the mountain, it will go and uproot itself to the sea. Hallelujah. And it will happen. You Hallelujah. should not doubt it. हालेलुया, Hallelujah. और जब वो वचन जाएगा आपके लिए अनुग्रह लेकर आएगा। And that word will be released and will bring grace to your life. आमेन। Amen. यीशु मसीह के दिनों में एक मुर्दा जवान लड़के को ले जा रहे थे। In the days of Jesus, one young man was carried as he was dying. लूका 7वें अध्याय के अंदर Luke 7. यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो वचन वातावरण के अंदर गया, मुर्दे के अंदर जान डाली, और वो अपने अर्थी के ऊपर उठ के बैठ गया। And Jesus said to that young man who was already died, young man raised and he stood up. हालेलुया, Hallelujah. यीशु मसीह एक काइरोस वचन बोलता था। And Jesus spoke this Kairos word. पिछले सप्ताह मैंने आपको सिखाया था क्रोनोस एक लाइफ स्टाइल है जो हम जीवन जीते हैं दुनिया के अंदर। हम पैदा होते हैं, हम सीखते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम नौकरी करते हैं, ये क्रोनोस में आता है जब तक हम मरते नहीं हैं। And last week we learnt about the Chronos. The Chronos is a lifestyle that we carry from since our birth till we die. लेकिन क्रोनोस एक लाइफ है जो पैदा होने से लेकर मरने तक है। Chronos is a lifestyle from the birth till last शादी breath. करना भी उसी में शामिल है, And marriage is also involved. बच्चे भी उसी में शामिल है, Raising of child is involved. नाना नानी दादा दादी बनना भी उसी में शामिल है। And getting old is also लेकिन involved. काइरोस डिवाइन विजिटेशन है, But Kairos is divine visitation from the जहां Lord, मरियम के पास स्वर्गदूत भेजा गया। where Mary received a visitation from the आपके जीवन के अंदर heaven. जब आप तकलीफ में होते, परेशानियों में होते, प्रभु आपसे मिलने के लिए आते, कभी स्वप्न में, कभी प्रार्थना करते समय, कभी वचन पढ़ते समय, वो काइरोस है। In difficult times, God visits to you through visions and dreams. That is the Kairos. जक्कई पेड़ के ऊपर छिपा हुआ बैठा था, And Zacchaeus was on the tree. यीशु मसीह वहां आया, Jesus came there. काइरोस वहां आया, Kairos came to जक्कई him. नीचे उतरा, Zacchaeus come down. मुझे आज तेरे घर में रहना I है। wanted to visit your home. आपके लाइफ के अंदर आपका काइरोस आने वाला है। In your life, your Kairos is going to come. कई लोगों के जीवन में आ चुका है, It has already visited some people. कई लोगों के जीवन में आएगा। To people, some, प्रभु to some आपको it विजिट will go. करेंगे। God will visit you. प्रभु का एक विजिट मरियम को जैसे बदल दिया, मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु का एक काइरोस आपकी लाइफस्टाइल को बदल देगा। And God's one visit to Mary transformed his life completely, and she said, Lord, I am your servant, let it be according to your word. लेकिन हम में One से- Kairos can change your life. हम में से कुछ लोग हैं, जब काइरोस आता है हम पहचान नहीं पाते हैं। And there are people who do not recognize the Kairos. जकरिया Zechariah. मंदिर में धूप जला रहा है, And he was, जिब्राइल आया, when he was serving in the तुझे एक temple, बेटा होगा, Jibril said, you उसका will नाम have a यमुना son. रखना। You should have मैं named कैसे जानूंगा, मैं तो John. बुढ़ा हूं। He was old man. अविश्वास किया,
he didn't believe. जिब्राइल ने कहा And Gabriel said, 9 महीने जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा तू गूंगा रहेगा. until the child is born, you will be a dumb. आपके काइरोस के अंदर कई बार जब डिवाइन विजिटेशन होता आप पहचानते नहीं है, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नेगेटिव रूप में देखते हैं. And when the Kairos visits to you and you do not recognize, you see the negative consequences of आपको those. पवित्र आत्मा के द्वारा इतना सेंसिटिव होना है कि जब आपका काइरोस डिवाइन मूवमेंट आए, जब प्रभु आपसे मुलाकात करने के लिए स्वर्गदूत को या वचन को या पवित्र आत्मा को भेजे, आप उसको पहचान सकें. And you should be so sensitive with the Holy Spirit that you should identify and recognize when the Kairos movements come to you so that you may partner with the Holy Spirit. परमेश्वर का धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो जकरिया को मिला. वो ये कहता है कि 9 महीने के बाद उसने बोलना प्रारंभ किया. That was the grace of God. And thank to the Lord that God's grace started, the Kairos started to minister over the John and started to speak. Zechariah started हालेलुया. to speak after होना 9 तो ये months. चाहिए था वो जीवन भर गूंगा रहता, क्योंकि उसने विश्वास ही नहीं किया है. And it should have been that he should dumb for the life because he लेकिन disbelieved. यीशु मसीह से जुबली साल चालू हुआ है. But from Jesus, Jubilee year और started. यूहन्ना जुबली ईयर का ट्रम्पेट था, And- एक तुरही थी. And John was the trumpet of Jubilee year. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जैसे यूहन्ना को मंदिर में लेकर आए, उसका मुंह खुल गया और वो भविष्यवाणी करने लगा. And when John was brought to the temple, the mouth of Zacharias was open, he started to prophesy. लूका 1:68 कहता है कि प्रभु ने मुझे विजिट किया है. And Luke says, Lord visited me. प्रभु ने मुझे विजिट किया है. Lord visited me. और मुझसे जो बेटा पैदा हुआ है, प्रभु उसके द्वारा इजराइल को विजिट करने जा रहा है. And the son that God has given to me, and through him God will visit to हालेलुया, Israel. हालेलुया. हालेलुया. जकरिया की तरह ना बने. You should not be like Zacharias. आप अविश्वास ना करें. You should not disbelieve. कई बार हम अविश्वास करके अपनी आशीषों को खो देते हैं. And through disbelief, we miss all our कई बार sometimes blessings. अविश्वास भी नहीं करते, लेकिन अल्प विश्वास करते हैं. Sometimes we do not disbelieve, but with little faith we miss our blessings. पता नहीं होगा कि नहीं. Whether it will happen or not. प्रार्थना तो कर दी है, अर्जी लगा दी है, उसको पता है कि वो कब देगा. We have applied our application to the Lord. We do not know when we will fulfill. अरे तुम किसी सरकारी दफ्तर में नहीं गए थे, तुम राजाओं के राजा के पास गए थे. And you not visited a government office, but you visited the King of Kings. मैं कई लोगों को घरों का जो पैसा मिलता है ना, ये कहते हुए सुनता हूँ, हमारी अर्जी जब स्वीकार हो जाएगी तो 2.5 लाख हमको घर बनाने के लिए मिल जाएगा. अरे उसकी ओर से आपके लिए सब कुछ दे दिया गया है. And sometimes when I talk to the people who are benefited in PM Awas, they said we have applied for PM Awas, I will receive 2.5. But when you apply to the Lord, you will receive grace from Him. जुबली का प्रभु जो छुटकारा देने वाला है. The Lord of Jubilee is जुबली deliver का प्रभु Lord. जो चंगा करने वाला है. The Lord of Jubilee heals. जुबली का प्रभु जो खोया है उसको वापस देने वाला है आपका सब The कुछ. Lord of Jubilee returns you what you जुबली का lost. प्रभु जो आपका अच्छा श्वास देने वाला है. The Lord of Jubilee gives you good health. जुबली का प्रभु जो आपकी हर एक प्रार्थनाओं को स्वीकार करके स्वर्ग से उत्तर देने वाला है. Lord of Jubilee answers your prayers from the heaven. एक दिन वो क्रूस पर था. One day he was on cross. 2 डाकू उसके आजू बाजू में थे. And 2 thieves were hanged on एक his डाकू left ने and जुबली के right. प्रभु को नहीं पहचाना. One thief did not recognize उस the Lord of विजिटेशन Jubilee. को, उस मुलाकात को नहीं He did पहचाना. not recognize that visitation. उसने कहा ये अपराधी है. He said he's a criminal. दूसरा कहता है हमने अपराध किया है. Second one says इसने we have कोई ऐसा sinned. काम नहीं किया He है. didn't sin anything. और जुबली के प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में And the Lord होगा. of the Jubilee said, "You will be with me in जहां my प्रभु heaven. है वहां आप होंगे. Where God is, you will be with me." प्रभु आज क्रूस पर नहीं है. Today, Lord is not on ना the तो cross. प्रभु पाताल लोक में है, He is not in the Hades. लेकिन प्रभु स्वर्गों के स्वर्ग में है. But he is in the heaven पिता of की दाहिनी heaven. ओर बैठे हैं. He is seated right on the आप वहां उनके साथ में of our ऑलरेडी Lord. इफिसी 2:5-6 के अनुसार बिठाए गए. According to Ephesians 2:5, you are already seated with the इफिसी Christ. 2 अध्याय कहता है हम जिलाए गए, उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठा दिए गए And हैं. Ephesians says we were raised and now we are seated with the Lord in the heavenly places. स्वर्गीय स्थान शैतान का भी है. And the heavenly places. स्वर्गीय belong to स्थान Satan यीशु का also. भी है. Heavenly places belong to Jesus also. यीशु का स्वर्गीय स्थान तीसरा आसमान है. And Jesus' heaven is third heaven. शैतान का स्वर्गीय स्थान दूसरा आसमान है. And Satan's heaven is second heaven. हम लोग अभी ऊपर वाली बिल्डिंग में बैठे हैं. And we are on the first floor. मान लो नीचे यदि कोई होगा तो हम उसके सर के ऊपर पैर रखे हुए. If someone is under this roof, we are upon him. समझ रहे हैं बात को? आपके पैर तीसरे आसमान में प्रभु के साथ रखे होने के कारण शैतान के सर के ऊपर है. Because you are seated with the Christ in the third heaven, your feet are on the head of the devil. अब अपन सब बातें कहते हैं शैतान ने किया.
And sometimes we say devil is. झगड़ा हो गया तो शैतान ने किया, This fight is गाड़ी because of पंचर हो गई Satan. शैतान ने किया, गाड़ी नौकरी चली गई because of शैतान ने Satan. किया, पति Man, पत्नी I में was झगड़ा हो not गया because शैतान ने of किया, Satan. पैसा नहीं है शैतान ने किया। Lacking finance, it's because of Satan. अरे तो यीशु ने क्या किया आपके लिए? And then what Jesus done for you? यही तो विश्वासी लोग कई बार काइरोस को नहीं समझ पाते। And in this way, the people do not recognize the kairos in the life. हालेलुया। Hallelujah. प्रेरितों के काम के अंदर 10वें अध्याय में स्वर्गदूत आया, कुरनेलियुस से मुलाकात किया, उसके लिए काइरोस था। And next end, when angels visited Cornelius, it was a kairos moment from Cornelius. और वो प्रभु की खोज करता था। He searched for the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूं जो लोग रेगुलर है अपनी प्रेयर में, And I wanted to say those who सुबह are जल्दी regular in उठकर prayers, प्रार्थना करते हैं, दोपहर को प्रार्थना करते हैं, रात को प्रार्थना करते हैं, those who are praying in the morning, afternoon, in the evening. परमेश्वर का काइरोस आपकी लाइफ के अंदर बहुत शीघ्र आने जा रहा है यदि नहीं आया तो। Lord's kairos is coming और very एक बार नहीं quick into परंतु your life. मल्टीपल टाइम होगा, It will come multiple times to अगेन you. एंड अगेन होगा। It will happen again and again. साधु सुंदर सलवाराज जो एंजल टीवी के संस्थापक है, Sadhu Selvaraj, who is the founder of the. मैं कई बार उनके Angel संदेश TV. सुनता हूं। I hear him sometimes. मैं उनको बहुत लाइक करता I हूं। like him very much. वो प्रभु के प्रॉफिट हैं, He's a prophet of God. रियली एक प्रॉफिट हैं He's वो। a prophet of God. और प्रभु उनको साक्षात दर्शन देते हैं। And God meets face to face with. कई him. बार वो खुली आंखों से मीटिंग के अंदर दर्शन देखते हैं। And with the open eye, he sees the visions. परमेश्वर ने उनको उस लेवल पर लेकर गए हैं। And God is taking him to that मेरे level. और आपका परमेश्वर काइरोस परमेश्वर है। Our God is a God of kairos. वो आपके जीवन के अंदर जब आप पूर्ण रीति से उस पर आश्रित हो जाते हैं, वो डिवाइन अपॉइंटमेंट को और मूवमेंट को आपकी लाइफ के अंदर बेचता है। And when you completely rely on him, he says he sends the divine appointments in your life. आपके संघर्ष खत्म हो जाते हैं, Your struggles आपकी finish. बीमारियां खत्म हो जाती है, Your diseases आपकी get समस्याएं over. खत्म हो जाती है। Your problems एक get over. मुलाकात आपके जीवन को पूर्णतया बदल देती है। One encounter with the Lord changes everything. शाऊल को प्रभु ने जब काइरोस मूवमेंट में छुआ, उसको एक रोशनी आई, दिखा और वो पृथ्वी पर गिर गया। And when Lord touched the Shaul in the Kairos moment, he saw everything and his life was changed. और वहां पर वो 3 दिन 3 रात के लिए प्रार्थना करता रहा। And he prayed for 3 days and 3 हनन्या nights. आया, प्रार्थना किया उसके ऊपर, उसको रोशनी मिली। And Ananya came and he received the आपके sight. काइरोस मूवमेंट में आपको जो सबसे बड़ा काम करना है, पौलुस की तरह आपको जो है प्रार्थना में कई दिन तक बैठना सीखना है। In your Kairos moment, what you need to do, you need to learn to sit and pray and fast with the Lord. कुरनेलियुस के परिवार में जो काइरोस मूवमेंट आया था, वहां उसने प्रभु के दासों को बुलवाने के लिए बोला तो उसने बुलवाया और पूरा परिवार उद्धार पाकर पवित्र आत्मा से भर गया और उन्होंने जल संस्कार लिया। In the Kairos moment of Cornelius, what he did, he called for the servants of the Lord and they visited him and he took the baptism even. जकरिया के जीवन में जब काइरोस मोमेंट आया, उसने जब यीशु को अपने घर में देखा, उसने कहा जो कुछ मेरे पास है मैंने किसी से बहुतायत से लिया है तो मैं 4 गुना उसको फेर देता हूं। रेस्टोरेशन किया उसने। And when the moment of Kairos came in the life of Zacchaeus, he recognized that grace and he returned to the people what he has taken. मरियम के अंदर जब काइरोस मोमेंट आया, उसने कहा मैं कुंवारी हूं, पुरुष के साथ सहवास नहीं हुआ है, लेकिन मैं यीशु की मां बनने के लिए तैयार हूं। When the Kairos moment came in the life of Mary, she recognized and she said, let it be according to the will of God to the servant. हालेलुया। Hallelujah. आपके जीवन में जब कभी काइरोस मूवमेंट आता है, वो आपकी लाइफ को कुछ टीच करने के लिए होता है। And whenever the Kairos moment come to your life, it is for your आपको learning. एक लेवल से आत्मिक रूप में दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए, It takes you from one level of spirituality to the next. आपको फेथ से फेथ में, विश्वास से विश्वास में बढ़ाने के From लिए, faith to faith, it takes you up. आपको अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ाने के लिए From है, grace to grace, it takes आपको you up. सामर्थ से सामर्थ में बढ़ाने के From लिए, power to power, it takes आपको you कृपा up. से दया और अनुग्रह में बढ़ाने के लिए, From His favor to grace and mercy, it takes आपको you बुद्धि up. समझ ज्ञान देने के लिए To है। give you the wisdom and understanding. सबसे बड़ा परिवर्तन यदि काइरोस मूवमेंट में होता है, आपका दिल बदलता है अंदर से और बाहरी तौर से आपका चाल चलन बदलता And the है। greatest miracle that take place in the Kairos movement, your inner being converts and your wisdom gets assigned with the Lord. मरियम को जब प्रभु का काइरोस मूवमेंट हुआ, वो सीधा एलिजाबेथ से मिलने चली गई। And Kairos moment of Mary हालेलुया। took him, took अब her कई to बार the विश्वासियों के Elizabeth. साथ
मिलकर दुआ करते। And sometimes you have fellowship with the believer. मरियम उसके साथ बैठी और उसने पूरी कथा सुनी जो प्रभु ने जिब्राइल के द्वारा एलिजाबेथ को दिया था। And Mary heard everything that happened with the Elizabeth, and she heard everything that Jibril said. आपका काइरोस मूवमेंट में आप अकेले नहीं रहते, लेकिन आप विश्वासियों की संगति में प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, घरूली सभाओं में इकट्ठे होते हैं। In your Kairos movement, you are not alone, but you gather with the believers, co-believers, and you have fellowship with them. जकरिया की तरह कई बार काइरोस मूवमेंट में आपके पास जो कुछ उल्टा सीधा ले लिया है उसको वापस करते हैं। And like Jacques, you return everything in those Kairos movement what you have taken. क्योंकि आपके हृदय में काम होता है। Because there is work going inside of your heart. हृदय में काम होता है। Inside of your heart. काइरोस मूवमेंट प्रभु आपके दिल को बदलता है। In the Kairos movement, God turns your heart. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. चर्च ये लास्ट डेज है। Church, these are the last days. और कई लोग तो कहते हैं ये लास्ट डेज के लास्ट डेज है, आखिरी दिन के भी आखिरी दिन है। And some people say these are the last of last days. मैं और आप यीशु के आगमन का रास्ता देख रहे हैं। And we are waiting for the coming of कभी भी Jesus. तुरही फूकी जाएगी, Anytime trumpet can कभी भी blow. ललकार होगी, Anytime trumpet कभी can भी blow. प्रधान दूत का शब्द होगा, Anytime chief कभी archangel भी can यीशु बादलों पर दिखाई देगा। Anytime you can see Jesus on the हो सकता है clouds. हम में से कुछ लोग बिस्तर पर हो, Sometime it might be possible you were on the हो bed. सकता है हम में से कुछ लोग ऑफिसेज में हो, We would have in the offices. हम में से कुछ लोग जो हैं हो सकता है किसी और जगह हो, Might be in other places also. लेकिन प्रभु हमको उठा लेगा। But Lord will lift us up. वो काइरोस मूवमेंट एक दिन बंद होगा जब प्रभु बादलों पर आएगा और अनुग्रह का काल समाप्त हो जाएगा। And that Kairos movement will come to an end when Lord will come on the cloud and the grace period will be closed. विश्व के अंदर करोड़ों करोड़ों कलीसिया यीशु के आगमन का रास्ता देख रही है। In the world, crores and crores of churches are waiting for the coming of the Lord. हालेलुया, Hallelujah. लेकिन जब तक काइरोस मूवमेंट जो है 2000 साल पहले शुरू हुआ था, वो जब तक यीशु बादलों पर नहीं आता वो चैप्टर क्लोज नहीं होगा। And Kairos movement is continuing since the coming of the Jesus, and it will not close until Hallelujah. the coming of Jesus on cloud. अभी स्वर्गदूतों को देखना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, And to see the angel, it is not पवित्र difficult in आत्मा these से days. सुनना बहुत ज्यादा कठिन नहीं To है, hear from the Holy Spirit is not difficult these परमेश्वर के days. वचन का प्रकाशन पाना कठिन नहीं है, To receive the revelation, it's not difficult. चर्च के लिए इकट्ठा होना कठिन नहीं है, To gather for the church, it's not difficult किसी these के घर days. में जाकर संगति करना या अपने घर किसी को बुलाकर संगति करना कठिन नहीं है। To have fellowship with the people and to visit them, it's not difficult these days. लेकिन ये उस दिन की तैयारी है जब वो बादलों पर आ रहा है। But this all are the preparation of that day when he will come on the cloud. इब्रानी 10:25 कहता है जैसे जैसे यीशु के दिन को आते देखते हो वैसे वैसे एक दूसरे के साथ ज्यादा इकट्ठा हुआ करो। And Hebrew 10:25 says, as you see the coming of that day, more and more you grow in these fellowships. हम में से कई लोग इकट्ठे तो होते हैं लेकिन इधर उधर की बात करते हैं। And many people gather, but they speak here and there, the useless talks. कई लोग भूत प्रेत की पिक्चरें देख लेते हैं, And people see the horror movies. कई when they सीरियल्स gather. देख लेते हैं, They see serials. कई अच्छा खाना बना के खा लेते हैं, Some people eat good food. कई घूमने चले जाते हैं। People go on visits. लाइफ को एंजॉय करिए, Enjoy the life. बट नॉट विदाउट क्राइस्ट, मसीह के बिना नहीं, बट विद क्राइस्ट। मसीह के साथ में. और प्रार्थना कितनी देर की करते हैं? And how much time you spend in prayers? प्रभु दिन को संभाला, धन्यवाद, रात को संभाल, हम सोने जा रहे हैं, सुबह का प्रकाश दिखा, अच्छी नींद दे, यीशु के नाम से आमीन। Bless the Lord for the food and for everything that you have given to us. Bless for everything, Lord. काइरोस समय आपकी लाइफ के अंदर नहीं आ पाएगा यदि आप प्रभु के लिए दिल से खोजी नहीं है। And Kairos movement will not come to if you are not seeking God with heart. मैं जानता हूं चर्च में बहुत सारे लोग हैं जो रात को उठकर प्रार्थना करते, सुबह उठकर प्रार्थना करते, लेकिन कुछ है अभी भी जिनका मन उस लेवल पे नहीं गया है। And I know there are people in the church who are praying late night and they are praying early morning, but there are people who have not turned their heart to the prayers. यीशु मसीह आओ जाओ, घर तुम्हारा, खाओ पियो बर्तन हमारा। प्रभु रोटी कपड़ा मकान दे दो, बिजली का बिल दे दो, पानी दे दो, खाना दे दो, लेकिन प्रभु अपना समय तुझे नहीं दूंगा मैं। Lord, you provide me everything that I require. I Lord, am but the I will boss not. of myself. I am the boss of my life. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने पति पत्नी मिलकर बेडरूम में प्रार्थना करते हैं? How many husband and wife they spend time यदि together नहीं in करते their तो शुरू bedroom? करिए, You should start if you are not praying together. बच्चों के साथ भी करिए With kids also, और बेडरूम में भी करिए। even in your bed also, bedroom Amen. also. Hallelujah.
एक बार की बात है, And once upon a time, एक बहन में से जो गांधीनगर की थी, हमने जिन्न को निकाला and we took out Jim from one of the sister, और मेरे साथ एक और भाई थे, हम दोनों गए थे वहाँ। and one another brother accompanied me. वो बहन अभी चर्च नहीं आती, वो किसी कारण से प्रभु से दूर हो गई। And that sister is not continuing; she left the Lord. तो रात को मैं और मेरी पत्नी हम एक कमरे में सो रहे थे। And night time when pastor and auntie was there in their bedroom, वो जिन्न मेरे कमरे में आया और खड़ा हुआ और बोलता है, मुझे बीच में सोने दो। and that evil spirit came and demanded, I want to sleep between you. और वो जो भाई मेरे साथ गया था उसके भी घर गया। जब मैंने यहाँ से कहा यीशु के नाम से भाग जा, तो उधर चला गया वो। And when I scolded him, that evil spirit left and visited that brother also. उसने भी ये कहा भाग जा, उसके बाद हमारे पास कभी नहीं आया। And he also scolded and he left him also, and then he never returned to us. आपको नहीं पता अंधकार के साम्राज्य में रात के विरुद्ध में क्या चीज़ें होती है, इसलिए हमको अपने बेडरूम में भी पति पत्नी को प्रार्थना करना चाहिए। Because you do not know what goes on in the darker world, your husband and wife should pray with each other in your bedroom also. ताकि काइरोस प्रभु का जो विजिटेशन है हमारी लाइफ के अंदर हो। So that Kairos moment visitation should be in your life. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. मेरा समय पूरा हुआ। My time is fulfilled. आमीन। Amen. सो काइरोस से प्रभु यही सिखाना चाहता है कि प्रभु हमसे मुलाकात करने के लिए बहुत जिज्ञासु है। And with the Kairos, Lord wanted to teach us that He is very much willing to visit us. मैंने लूका रचित सुसमाचार में 2 जगह ऐसा पढ़ा। In the Luke, I have read it twice. लिखा है कि प्रभु लोगों से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखता था। That Lord was very much willing to meet with people. और दूसरी जगह ऐसा लिखा है, लोग प्रभु से मिलने की इच्छा रखते थे। And second place it is written that people were very interested to meet with Jesus. 9वें अध्याय में लूका में, Luke 9, और शायद 10वें अध्याय में even 10 chapter. प्रभु मिलना चाहता था और लोग भी मिलना चाहते थे। Lord wanted to meet and people wanted to meet Lord. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. लास्ट एग्जांपल में देकर आप बंद करना चाहता हूं। And the last illustration I will give. यदि यीशु मसीह यूहन्ना अकेला था पतमुस नाम टापू में, उसको काइरोस मूवमेंट दे सकता है अपनी संगति देकर, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखने के लिए उसको प्रेरित कर सकता है। तो आपके अकेलेपन में, आपके दुखीपन में, आपके कमजोरी में, आपकी घटी में, आपके हर एक नुकसान के समय वो प्रकट होकर ये कहना चाहता है, मैं अधोलोक की कुंजी रखता हूँ, मृत्यु की कुंजी रखता हूँ। मैं मर गया था लेकिन अब मैं सदा के लिए जीवित हूँ। Hallelujah. If Jesus can give revelation or the Kairos moment to the John in the island of Patmos in all those difficult situations that he was going, that same Jesus can give you in all of your difficult circumstances, in all your odd situations, the grace of the Kairos on your life. यूहन्ना को इफिसुस की कलीसियाएं और जितनी कलीसिया में वो बिशप था उसकी चिंता थी। And John, who was bishop to the churches, he was very much concerned about the churches. प्रभु ने उसको ये दिखाया कि जितने पास्टर्स वहाँ हैं वो प्रभु के हाथ में हैं, और प्रभु उन दिवटों के मध्य में, जो कलीसिया दिवट है उसके मध्य में चल रहा है। And to John it was shown that Jesus is with them, the serving pastors over there, and Jesus is walking in midst of those 7 lampstands. कई बार पास्टर्स लोग आपको विजिट नहीं कर सकते, लेकिन यीशु आपके घर को विजिट करते हैं। Sometimes pastors cannot visit you, but Jesus will visit you. आमीन। Amen. क्योंकि वो काइरोस का प्रभु है, Because he's the God of वो Kairos. डिवाइन अपॉइंटमेंट का प्रभु है। He's the God of divine appointments. लूका 19:44 में लिखा है, जब यरूशलेम ने यीशु को नहीं पहचाना तो यीशु उनके लिए रोने लगा। And Luke 19:44 says, when people did not recognize him, he started to weep for them. और यीशु बिलक बिलक कर रोया। And he wept for them bitterly. यीशु 2 बार रोया पूरी बाइबल के अंदर। In the whole Bible, Jesus wept for 2 times. एक बार लाजर की कब्र के पास, Once at a grave और of एक बार Lazarus, यरूशलेम की आत्मिक दशा को देखकर। and one at the spiritual condition of चर्च हमारी Israel. आत्मिक दशा को देखकर भी कई बार प्रभु रोता होगा।
And sometimes he cries or seeing our spiritual conditions. क्योंकि हम कई बार काइरोस मूवमेंट को नहीं पहचान पा रहे, Because- उसकी मुलाकात को नहीं पहचान पा रहे। Because we do not recognize his kairos moments sometimes. लेकिन जब हम पहचान लेते हैं, But when we recognize that हम उसके moment, राजदूत इस पृथ्वी पर हो जाते हैं। we become ambassador of him on आमीन। this world. आप और मैं उसके राजदूत We हैं। are his ambassadors. आप और मैं उसके राजदूत We हैं। are his ambassadors. मैं और आप उसके राजदूत हैं। We are his ambassadors. बोलिए, मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ। I am the Lord's ambassador. प्रभु मेरे द्वारा मुलाकात करके लोगों को आशीषित करेगा। Lord will meet with people through me. आमीन। Amen. खड़े हो जाएं। थैंक Stand यू on your जीसस। feet.